اہلکارن مٹھائی تحفہ رنگ پیش کرنا آئی تو بھارتی فوجی اہلکاروں طرف تحفہ قبول کرت پاکستان رینجرز کن اہلکارن مٹھائی پیش کرنا آئی درس ملکس مز یہ آز دیوالی ہند تہوار جوش جذبہ تو عقیدت سان مناؤن تت وزیر اعظم نریندر مودین نوشہرہ راجوری مز فوجی اہلکارن ست یہ دیوالی منم یتھ دوران تمن فوجی جوان خطاب کران وون ز ملک کن سرحدن ہز حفاظت کرن والن جوانن ست تہوار مناونس مز تمن سٹھائی خوشی محسوس سپدان تو یہ وجہ ز تم پریت کان تہوار جوانن ست مناونچ کوشش کران نے ہر یدھ کا ہر چھدم کا ہر षड्यंत्र کا معقول جواب دے کر کشمیر اور سری نگر کے پرہری کا کام کیا ہے آزادی کے ترنت بعد ہی دشمنوں نے اس پر نظر گھڑا کر کے رکھی ہوئی تھی نوشہرہ پر حملہ ہوا دشمنوں نے اونچائی پر بیٹھ کر اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور ابھی جو مجھے پورا ورت ویڈیو سمیت ساری چیزیں مجھے دیکھنا سمجھنے کا موقع ملا اور مجھے خوشی ہے کہ نوشہرہ کے جانبازوں کے شوریہ کے سامنے ساری سازش سے دھری کی دھری رہ گئی دوستو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارتی سینا کی طاقت کیا ہوتی ہے اس کا احساس دشمن کو شروع کے دنوں میں ہی لگ گیا تھا جی میں نمن کرتا ہوں نوشہرہ کے شیر بریگیڈیئر محمد عثمان کو نائک جدوناتھ سنگھ جی کو جنہوں نے دیش کی رکشا کے لیے اپنا سرووچ بلیدان دیا میں پرنام کرتا ہوں لیفٹیننٹ آر رانے کو جنہوں نے بھارتی سینا کی جیت کا راستہ پرشست کیا تھا ایسے کتنے ہی ویروں نے نوشہرہ کی اس دھرتی پر گرو کی گاٿا سرجیکل سٹرائیک میں یہاں کی بریگیڈ نے جو بھومکا نبھائی وہ ہر دیش واسی کو گورو سے بھر دیتا ہے اور وہ دن تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کیونکہ میں طے کیا تھا سوریاست کے پہلے کہ سب لوگ لوٹ کر کے آ جانے چاہیے اور میں ہر پل فون کی گھنٹی پر ٹک ٹکا کے بیٹھا ہوا تھا کہ آخر سے آخر میرا جوان پہنچ گیا کیا اور کوئی بھی نقصان کیے بنا یہ میرے ویر جوان لوٹ کر کے آ گئے پراکرم کر کے آ گئے سدھی پراپت کر کے آ گئے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سرجیکل سٹرائیک کے بعد یہاں اشانتی پھیلانے کے ان گنت کتسک پریاس ہوئے آج بھی ہوتے ہیں لیکن ہر بار آتنکواد کو منہ توڑ جواب ملتا ہے استیہ اور انیائے کے خلاف اس دھرتی میں ایک سوابھاوک پریرنا ہے مانا جاتا ہے اور میں مانتا ہوں یہ اپنے آپ میں بڑی پریرنا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پانڈووں نے بھی اگیات واس کے دوران اپنا کچھ سمے اسی چھیتر میں ویتیت کیا تھا آج آپ سب کے بیچ آ کر میں اپنے آپ کو یہاں کی ارجا سے جڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں ساتھیوں اس سمے دیش اپنی آزادی کے 75 वर्ष کا पर्व منا رہا ہے آزادی کا امرت مہوتسو غلامی کے لمبے کال کھنڈ میں اسنکھ بلیدان دے کر ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے
इस आजादी की रक्षा करने का दायित्व हम सभी हिंदुस्तानियों के सर पे है, हम सबकी जिम्मेवारी है। आजादी के अमृत काल में हमारे सामने नए लक्ष्य हैं, नए संकल्प हैं। मरकजी सरकार तरफ ये रात शाम पत पेट्रोल तो डीजल कन कीमतन मज कमी हुंद ऐलान करना आव तो भारतीय जनता पार्टी लीडरों तरफ याक मजबत कदम वन तज हिजबी इख्तलाफ तो कांग्रेस पार्टी हिंदो लीडरों तरफ सरकार के फैसलस पे कई सवाल खड़ा करना आमद। टैक्स जीवी मोदी सरकार को प्रजातंत्र का सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया। पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? और एक सवाल का जवाब और दीजिए, कांग्रेस के समय में भारत सरकार जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर थी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। आज अगर 5 रुपया और 10 रुपया लीटर कम भी कर दें तो भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर 5 रुपया लीटर कम करने के बाद और डीजल पर है 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर 10 रुपया कम करने के बाद। इसलिए जुमले नहीं चलेंगे। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान दे करके डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। यूपीए के वक्त प्रति बैरल कच्चे तेल का मूल्य था $105.71। पेट्रोल तब 71 रुपए 41 पैसे में बिकता था, डीजल 55 रुपए 49 पैसे में बिकता था। एक्साइज क्या थी? यूपीए के वक्त पेट्रोल पर एक्साइज ली जाती थी 9 रुपए 48 पैसे की, डीजल पर ली जाती थी 3 रुपए 56 पैसे की। मोदी जी ने एक्साइज 32 रुपए 90 पैसे कर दी पेट्रोल पर, डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे कर दी। आज 5 रुपए पेट्रोल पे घटा दी और 10 रुपए डीजल पे घटा दी तो उससे क्या राहत मिलेगी लोगों को? हम फिर से यह मांग दोहराते हैं, जितनी आपने एक्साइज बढ़ाई है उतनी कम कर दीजिए, तब जाकर राहत मिलेगी। ये एक बात सबको समझ में आ गई है कि भाजपा हराओ महंगाई घटाओ। कल तमाचा मारा राजस्थान और मध्य प्रदेश और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जनता ने, दादरा नगर हवेली की जनता ने, तो आज थोड़ी कम कर दी एक्साइज। कम ही करनी थी तो ये तमाम जो आपने बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल पर वो कम की जाए, तब राहत मिलेगी। उससे पहले मिडिल क्लास को, गरीब को, किसी को भी राहत नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर बैंक सहित मुंसलिक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों तरफ आज अनंतनागस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत यदवै तबन कया वरी बैंक सहित मुंसलिक आसन पत तनख्वाहस मज इजाफ सपदन उम्मीद, ताहम तिहंदिस तनख्वाहस मज कटवती करना आमुत यम किन तिम सड़कन पे गिनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ बैंक इंतजामिया तो LG इंतजामिया मंग करना आमद जे अत मामलस कुन गज रोन दिन युन यथ जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने युन। हम JK बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा मकसद ये है
जो कंपनियां इस वक्त जेके बैंक ने हायर की थी उनको कारपेट ने 10 दिन के लिए होल्ड में रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि 10 दिनों तक हमारे जो लड़के हैं मैं उनको इतला देता हूं कि वो अपनी ड्यूटियां बखूबी अंजाम दे। सिविल वर्दी में कोई भी वर्दी नहीं पहनेगा और जो भी मेल आएगी कारपेट से हमें जो भी एसोसिएशन फैसला लेगा वो हम फैसला मानने के लिए तैयार है। आगे की कार्रवाई उसी पे होगी। इस वक्त हमारी डिमांड यही है कि तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए और हमें कंपनियों के साथ काम नहीं करना है, हम जेके बैंक से काम करने के लिए तैयार है, वो भी फ्री में। अगर वो नहीं दे तो लेकिन मीडिया कंपनी हमें मंजूर नहीं हो। यपर कुलगमस मज आज सिक्योरिटी गार्डों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल नौजवान इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमुत यदवे तिमन कया वरी बैंक सहित मुंसलिक आसने पत तनख्वाह मज इजाफ सपदन उम्मीद ताहम तिहंदिस तनख्वाह मज कटवती करना आमज यमकिन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज़ात मामलस कुन गज खास जोन दिन जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। पतिम 10 वरी कर जेके बैंकस मज एज सिक्योरिटी गार्ड काम यथ मज मुख्तलिफ नामुसाइद हालात आए, यथ मज लॉकडाउन त गो, यथ मज बाकी हालात आए, हड़ताल त गो, मगर अस दिस बखूबी असल पे ड्यूटी अंजाम। तो आज कंपनी चेंज गमच तो यथ मज वन कि तुहद सैलरी हसा डाउन कर 5500 यह जन सठा काबिल रहम सान खतर क्या वनकन महंगाई हूं दौर और ये जन सारे वनकन सैलरी गस हुरन बल्कि दपान सैलरी करो कम तो और बे दपान बे करो डिसएंगेज यथ मज गाड़। लिहाजा गुजारिश कर गवर्नर साहबस और बे चेयरमैन साहबस गुजारिश कि सैलरी सन कर इनक्रीज तो बे गि डिसएंगेज कहीं त गाड़ इन कर। श्रीनगर किस सफाकदल इलाकस मज आज हजरत शाह नामतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह हुंद सालाना अरस अकीदत एहतराम सान मनावन आमुत। यथ दौरान अत दरूद अज़कार चन मजलिसन हुंद सांज करना आव यथ मज अकीदत मंदन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। यल जन इंतजामिया कमेटी तरफ ज़ायरीन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमत। माजामा बडगाम के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस हवाले वरी 2009 मज प्राइमरी हेल्थ सेंटर बापत इमारत तमीर करनस हवाले काम शुरू करना आई, ताहम चन आज ताम इमारत मुकम्मल करना आमज यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमज काम पाई तकमीलस वातनानस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यीन युद्ध जन सु मकसद पूर सब्दी यम बापत कसीर रकम खर्च करना आओ। इस गांव का नाम माजामा है। बिल्कुल हम गुलमर्ग रोड पे यहाँ पे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि एक न्यू टाइप हॉस्पिटल यहाँ पे बन रहा है। 2009 में इसका काम शुरू किया गया, आज 2021 चल रहा है। 2017 तक इसका काम चलता रहा, पर 2017 में इसका काम रोक दिया गया। जब हमने यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात की इस बारे में तो उनका कहना था कि मेरे 18 लाख पेंडिंग है, मेरी जो पेमेंट है वो नहीं हुई है, तो हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो यहाँ के ऑफिशियल है उनसे जब हमने बात की तो वो हमें बार बार भरोसा देते रहे कि इस पे आज और कल काम हो जाएगा, पर आज तक इस पे काम नहीं हुआ। तो आज हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को फंक्शनल किया जाए, इस पे जो रुका काम है इसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मसला ये बने यह हस्पताल 2009 मज 2 वरियन असल पे कम, मगर पे चल कम टोटल कहें, पे त्रुक ये अति पड़ा नतीज नान गए ठेकदारस
دوٚپُس ژٕ کیٛازِ نہٕ یَتھ کٲم لاگان ٹھیکدر چھُ وَنان مےٚ ہسا چھِ پرٛٲنۍ پونٛسہٕ وٕنہِ 18 لَچھ رۄپیہِ یَتھ بنٛد بہٕ کیٛاہ کٲم لاگہٕ اَتھ تَتھ چھُنہٕ پونٛسَے ترٛاوان سُہ کیٛاہ کٲم لاگٮ۪س یِم چھِ دَپان أسۍ لاگو کٲم أسۍ لاگو مگر لاگان نہ حظ چھِنہٕ ٹوٹل کِہیٖنۍ یَتھ حظ گٔژھ اَسہِ کٲم لَگٕنۍ یہِ گوٚژھ اَسہِ چالوٗ گژھُن لُکَن واتہِ ہے آرام یہِ حظ چھُ گُلمرگ روڈ ہاے وے روڈَس پٮ۪ٹھ یَتھ حظ چھُ بار بار ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ اَسہِ چھُ پٮ۪وان سرینگر گژھُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ 15 کِلوٗمیٖٹر دوٗر بعض وقت چھَنہٕ گٲڑۍ تہِ بَنان کٲنٛسہِ کانٛہہ چھُ آسان غریٖب شخص تَتھ چھَنہٕ بِچارَس رۄپیہِ دَہ آسان کِراے کِژ تہِ سُہ گژھِ ہے سُہ کَرِ ہے گٲڑۍ سُہ گژھِ ہے سرینگر مگر أسۍ حظ چھِ گُزٲرِش کَران گورنر صٲبَس یَتھ کُن لَگہِ تو کُنہِ پٲٹھۍ کٲم یہِ کٔرۍتو کُنہِ شمالی کشیر ہند پٹنہ کیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے انتظامیہ طرف لوکن معقول بجلی فراہم کرنے دعو کرنے تاہم علاقس مز بجلی ہز یت گژھے کن عام لوک مشکلن مز ہینہ آمت تو محکمہ بجلی طرف ات پہ روٹ لاگنس حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقس مز لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ہمیشہ بجلی ڈپارٹمنٹ ونان کہ وند برہ تم کران اعلان کہ موسم سرما خاطر تیار بجلی دن خاطر مگر ون اکتوبر چلان نومبر لوگ مطلب ان لج آنکھ مچولی گھنہ محکمہ بجلی چیف انجینئر صاحبس گزارش کران کہ مطلب اگر شیڈول مطابق دہ پاور مطلب اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بس مگر امن ترٛاوو ژٕ برابر 3 گھنٹن پاور تُہۍ کران 5 منٹن ترٛاوان پاور 10 گھنٹس بند گوٚمُت تو لہذا کٔرِتھ وُنہِ ونٛدٕ یِنَے ونٛدٕ کال چھِ اَسہِ وُنہِ یِنَے مطلب وُنہِ چھِ واریاہ ٹایم ونٛدس تقریٖبن ڈیسمبر بیٚیہِ چھِ چِلے کلان چھِ وُنہِ یُتھُے شیٖن چھُ پیٚوان یہِ گوٚو وُنکیٚنس حال تَمہِ ساتہٕ کُس حال آسہِ اَسہِ بجلی ڈپارٹمنٹ یِمن کران پوٗرٕ زور گُزٲرِش کہِ أسۍ مطلب اسم کرنا سفر کی پنہ مطابق شیڈول مطابق پاور ہمیشہ کران محکمہ بجلی کران یہ دعویٰ کہ ود ین برونٹھے دعویٰ یہ کران کہ موسم سرما خاطر تیار مگر ستم ذریعہ یہ کہ اکتوبر پہ ووت آنکھ مچولی کران بجلی محکمہ بجلی ان سنی پاورے آسان محکمہ بجلی گزارش کران کہ تم دین سا ات کت سام کہ اس دین شیڈول مطابق پاور اس میٹر لگت ونان اس دیو سا 12 گھنٹے پاور اس دیو سا فل پاور مگر اس دیو سا سہ پاور اس تھی دعویٰ کران وندس من ود برونٹھے کران تھی دعویٰ ہسا دمو یہ پاور دمو مگر نومبر آنکھ مچولی پاور سپدان یہ ون ہسا نومبر دسمبر جنوری پتہ جنوری دسمبر گجر بستی شیرگنڈ شانگسو کیو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز بجلی چناب سڑک تو دویم بنیادی سہولت نہ آسن کن عام لوکن کیا مشکل ویترن پیوان تو یہ معاملہ کیا پھر حکامن ہز نوٹس مز ان آو تاہم آز تام کھانا قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت علاقس مز لوکن بنیادی سہولت آیتن تھونس حوالہ گھن قدم تلنے یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین تو میں اپنے گاؤں کی یہ حالات آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے آج یہاں پروٹیسٹ نکالا یہ لوگوں کو جمع کیا ہے کہ نہ ہمیں روڈ ہے نہ ہمیں بجلی ہے نہ ہمیں پانی ہے نہ ہمیں سکول ہے نہ ہمیں آنگن واڑی ہے کوئی بھی سہولت ہمارے گاؤں میں نہیں ہم بالکل زیرو پر ہیں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کیا ووٹ مانگنے کے لیے جب آتے ہیں تو ہم سے ووٹ لے جاتے ہیں اور بعد میں کوئی یہاں نظر دینے کو بھی نہیں آتا ہے جب ہم جاتے ہیں نیچے ان کے پاس تو وہ ہم کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں آپ کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو پھر کوئی پوچھتے نہیں ہے اس لیے ہماری جو مانگیں ہماری جلد پوری کریں ہم گورنر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مانگوں کو پورا کیا جائے چاک شیرگنڈ بہت بڑا گاؤں ہے اس میں 4 محلے ہیں آنگن واڑی سینٹر کوئی نہیں ہے اس میں آنگن واڑی سینٹر 4 ہونی چاہیے تھی 4 محلے ہیں بڑے تو اس میں آنگن واڑی کے محلے میں 4 محلے میں 4 آنگن واڑی ہونی چاہیے تھی ایک آنگن واڑی ایسے رکھی ہے اس میں درماندہ بچے آتے ہیں پانی نہیں کھانا کہاں سے بنائیں گے کہاں سے جو گھر والی ایک ہوتی ہے پانی ڈھونے کے لیے جاتی ہے وہ بچے کو سکول بھیجے یہ ڈیمانڈ ہے ایک سکول کی بلڈنگ کی سر پانی کی بہت سے مشکلات ہیں روڈ کی تیسری مشکلات ایسی ہے ٹھیکیدار 5واں چلا گیا یہاں سے
वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख उसके खाते में डालते हैं। हमने जेब से खर्चा लगाया, नरेगा में हमने निकाली है पहले। पानी की और रोड की, हमारे बच्चों को जब बारिश पड़ती है हमें बच्चा चाह कर जाना पड़ता है रोड पे। पानी की मुसीबत है, हमें जब बारिश पड़ती है हमें उधर से लाना है, आगे आगे वहाँ से लाना पड़ता है पानी। 1-2-3 किलोमीटर है, एक आगे लाते हैं, 2-4 दिन उसी पर गुजारा करते हैं। पानी की भी प्रॉब्लम है, यहाँ हर चीज की प्रॉब्लम है। कोई यहाँ आता नहीं, ये बस्ती किसी जगह में है ही नहीं है, ना इस जगह का किसी जगह नाम है, ना किसी आगे इसका नाम चलता है, ना कोई इसका गौर करता है, ना कुछ। हमें सब की प्रॉब्लम है, सब चीज। फोक एसोसिएशन जम्मू कश्मीर तरफ आज कपवारिस मज कल्चरल प्रोग्राम साज कर आमुत, यथ मज एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तो मुकामी फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे रवायती बांड पत्र पेश करना आव, तब LG इंतजामिया मांग करना आम बांड पत्र सत वाबस्त फनकारन कुन गस खास जोन दिन युन, युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। तमाम डिपार्टमेंटन गुजारिश करा करा वनस नारा जून प्रोग्राम ते ऑनलाइन सोन फोक थिएटर खास कर बांड पत्थर तो बे छकर अत मन छकर तवान तो बांड पत्थर तवान। यह क्या गो ये दो का दो खत्म, लुकन क्या रूद अत कुन कह तवज्जो। यह अमुक वजह ये युत काल न कलाकार फनकार पान कोशिश करे लुकन तम वातन तुत काल हेक तमिस निश कह ब्रोह कुन यत। अस पज यह पन ट्रेडिशनल कल्चर मशरावन। खास कर छुस बह गुजारिश करान यस ये रियासती कल्चरल अकाडमी तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नारद जून कल्चरल सेंटर पटियाला, संगीत नाटक अकादमी यमन 3 वरियों पे यमन ग्रांट आव दिन क्या। खास कर उस वनकन गवर्नर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब तो बह कर तमिस निश पन रिप्रेजेंटेशन पेश यहंद खतर यमन कलाकारन हंद खतर यमन दिव सा पनुन युस यमन ओल्ड पेंशन उस तरान या ग्रांट्स तरान तिम करियो सा यमन वागुजार। बह छुस यछान यह सोन कल्चर गछ पूरे वर्ल्डस मज वातुन तिक्याज यमन त्रालस से तोलुक थवन वाले नौजवान खिलाड़ियों तरफ वन आमुद यदवे बजवन क्रिकेट स्टेडियम तमीर करनस पे सरकार तरफ करोड़ बद रुपये खर्च करना आव, ताहम आज ताम स्टेडियम मुकम्मल पे तमीर करना आमुत, यम किन मुकामी खिलाड़ियन सड़ा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी खिलाड़ियों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत बजवन स्टेडियमस कुन गस जोन दिन युन, युत जन मुकामी खिलाड़ियन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। क्योंकि हम हर जगह खेलने जाते हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल जाते हैं, बारामूला जाते हैं, अनंतनाग जाते हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम खेलने गए तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा वो बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है, आला है। क्योंकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, जो त्राल का इकलौता मैदान है, यहाँ पे ये खस्ताहाली का शिकार। देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे DC हो चाहे ADC हो त्राल का, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे विजिट किए, लेकिन उन विजिटर्स का नतीजा कुछ नहीं निकला। उन्होंने बहुत बड़े बुलंद दावे किए कि ये स्टेडियम तैयार होगा, यहाँ पर फ्लड लाइट्स होंगी, यहाँ पर पूरा मेंटेनेंस होंगी, यहाँ पर जो भी जिस भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है स्टेडियम के लिए, चाहे फुटबॉल के लिए या क्रिकेट के लिए, वो भरपूर हम ताउन देंगे है। लेकिन अभी तक वो सब दावे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो खोखले साबित हुए। इस त्राल के साथ, इस स्टेडियम के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। मेरी अपील ये है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो त्राल के बच्चे हैं उनके लिए ये स्टेडियम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए ताकि ये बच्चे ड्रग्स से भी दूर रहे और इनका सपोर्ट्स टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। अब देखिए हम ये टर्फ वगैरह यहाँ पे हम खुद ही मेंटेन करते हैं, खुद खेलते हैं और यहाँ पे इतने खड्डे हैं, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। रोज़ प्लेयर हमारे ज़ख्मी होते हैं यहाँ पे हर दिन। जब भी हम खेलते हैं अपने शौक के लिए, यहाँ पे हम दूर दूर तक खेलने के लिए जाते हैं, सभी जगह पे हमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अपने त्राल में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पे सब कुछ। यही अपील है कि जितना जल्दी हो सके हमारा ये ग्राउंड तैयार करें, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी आगे बढ़े, यहाँ पे भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हों। यहाँ पे हमारे ग्राउंड पॉसिबिलिटी ना होने की वजह से ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं हो पाता, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में अच्छे टूर्नामेंट्स हो पाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं त्राल के वाहिद स्टेडियम बचवन स्टेडियम त्राल में मौजूद हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, खेल रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप सबको मालूम है करोड़ों रुपए इस ग्राउंड पे खर्च किए गए, लेकिन जो सूरत-ए-हाल है ग्राउंड की वो खेलने के काबिल नहीं है। यहाँ पे फील्डिंग करने के लिए वैसा जो स्मूथ सरफेस होनी चाहिए वो नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं कश्मीर में बहुत ज़्यादा टेंशन है, हर एक जो इंसान है वो टेंशन में मुब्तला है, स्ट्रेस में मुब्तला है, और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो वाहिद हल है मेरे ख्याल में एक स्पोर्ट्स ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ग्राउंड को अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। और मैं गवर्नमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बारे में फिर से देखें, और जो भी पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है या जो खर्च किया जाएगा इसको अच्छे तरीके से शूसपालपुर पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे सासवाद कनाल जमीन सराब करने वलिस मुकामी नालचे सफाई हवाले कई आय फिर महकमे इरिगेशन कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी जमींदारन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी जमींदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। मेरा नाम जावेद अहमद है और मैं शूसपालपुर में रहता हूँ। और जो आप यहाँ पे ज़मीन देख रहे हैं, इतनी ज़मीन है यहाँ पे, हज़ारों कैनल में ज़मीन पड़ी हुई है। ये लोगों की ज़मीन है, हमारी भी ज़मीन है। यहाँ से जो पानी जा रहा था, जो हमारा कैनल है यहाँ पे, जो जहाँ से पानी आ रहा है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो किस सिलसिले में बंद हो चुका है वो भी तक हमें पता नहीं है। तो इसलिए इसके सिलसिले में हम गए थे डिविजनल कमिश्नर के पास, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था, लिखा है कि इस जो कैनल है इसको रेस्टोर किया जाए। पर उसके बाद पता नहीं कि 2 बार हम लिख चुके हैं, आप देख सकते हो जो भी ये ऑर्डर है डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, लोगों ये दिया गया है कि उसको रेस्टोर किया जाए। मगर हम देख रहे हैं कि जो इरिगेशन अफसरान है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, किसी ने इस पर ऐसा तवज्जो नहीं दिया है। तो इसलिए हम फिर से ये डीसी बारामूला से रिक्वेस्ट करते हैं, बर्खास्त करते हैं कि इस मामले में देखें कि प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं इरिगेशन वाले। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो रही है, ये जो कैनल है टोटल बंद है। तो इस वजह से जो फ्लड, ये जो पानी का बहकाव आ रहा है, कल हमने यहाँ पे मकान भी है तो उनको डैमेज हो सकता है। तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।